فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جانور کے لیے چیلنج ہے ہی نہیں، جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں، اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ چلا دیتا ہے۔ جس نے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے، جس نے خانے وال جانا ہے اس کو خانے وال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے، جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے۔ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے، جو اس کی منزل ہے فطرت اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے۔ اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ
हमसे मशवरे लेके खाता तो गोश्त के साथ थोड़े से फाइबर मिला के खा रहा होता, हाजमा इससे क्या होता है, अच्छा होता है। या कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता हजम करने के लिए, तो अल्लाह ने उसको चला दिया उसकी लाइन पे। वो आप चिड़ियाघर में भी लाओगे ना, वो नहीं मानता इस चिड़ियाघर के प्रोटोकॉल को, जू के प्रोटोकॉल को वो नहीं मानता। वो कहता है मुझे वैसा ही पहाड़ चाहिए, मुझे वैसा ही कच्चा गोश्त चाहिए, हड्डी तोड़ के खाऊंगा मैं, ये क्या कबाब और कोफ्ते बना के मेरे सामने तुम लोगों ने पेश कर दिया, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शेर के पिंजरे में आप शेर छोड़ दें, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, वो उससे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। आप उसको लॉ ला के दिखाएं, यूके में नेशनलिटी मिल जाएगी भाई तुम्हें, समझ रहे हो? कोई उसके कोई दलील कारगर नहीं होगी। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे चूंकि फीमेल नहीं मिल रही तो मेरे भी जज्बात हैं, चलो वसीम सही, फिर शेरों में भी तो वसीम सत्तार होते हैं ना, चलो सत्तार भाई, चलो गफूर भाई, चलो जी ये। ना 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 ना, उसकी नेचर उसकी तरफ माइल बोलो नहीं हो, गंदगी है ये, वो नहीं मानेगा इसको। तो जानवर बच्चा बकरी का पैदा होते ही कहां दूध की तरफ लपकता है। आप उसके सामने गोश्त डालोगे, कभी भी उसको मुंह मारने की कोशिश नहीं करेगा वो। लेकिन इंसान का जो मसला है ना मेरे भाई, सारा मसला इंसानों का है। इंसान के सामने दो बड़े चैलेंज हैं, एक फितरत की डेफिनेशन क्या है, नंबर 2 उस पे चलना कैसे है। ये जो कुरान कहता है ना, कुरान का जो इंट्रोडक्शन अल्लाह ने कराया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, पहली आयत यही है ना सूरह बकरा जहां से शुरू हो रही है। अल्लाह ने कुरान का इंट्रोडक्शन करवाया, ये एक किताब है जिसके हक होने में कोई शुबहा नहीं है। अल्लाह ये क्यों नाजिल की है तूने? अल्लाह ने कहा कि ना ये मेडिकल साइंस की किताब है, ना इसे पढ़ के तुम गुर्दों से पथरी निकालने का तरीका मालूम करोगे, ना इससे पढ़ के तुम चांद पे पहुंचने की कोशिश करोगे, ना ना ना, ये सारे साइंस के टॉपिक हैं, ये कुरान का टॉपिक नहीं है। हम उस टॉपिक को छेड़ेंगे जिसे दुनिया में कोई नहीं छेड़ता, का हुदल लिल मुत्तकीन, जो लोग सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं। फितरत की डेफिनेशन और उस पे चलना कैसे है, मुत्तकीन की ये डेफिनेशन है, जो चाहते हैं सीधे रास्ते पे, गलत रास्ते से बचना। मुत्तकी किसे कहते हैं? देखो, मुत्तकी अरबी में कहते हैं बचने वाले को। तो क्या मतलब? जो नेचर से हट के रास्ता है उससे बचने वाला, जो ये चाहता है कि मैं जो खिलाफे फितरत काम है उससे बच के नेचर पे चलूं। तो हुदन इसमें, इस किताब में उनके लिए क्या है? गाइडेंस है। मैं कहता हूं कुरान की जरूरत के लिए ना, कुरान की जरूरत समझने के लिए ये एक आयत बहुत बेहतरीन है, उससे आपको कुरान की अहमियत का अंदाजा होगा। मुझे बताओ, इंसान के लिए इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज हो सकती है कि जिस नेचर पे उसको पैदा किया गया है उस नेचर पे वो चलता रहे? आप अगर नेचर से हट जाते हो ना, आप सबसे पहले मेंटली डिस्टर्ब होते हो, चाहे कितनी सहूलतों में हो आप। चिड़ियाघर में, जू में आपने शेर को लाके रखा, सारी सहूलतें दे दें, लेकिन उसका वो नेचुरल माहौल न दें जो उसको जंगल में मिला है, शेर की खोपड़ी थोड़े दिनों में क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। एन मुमकिन है वो फिर वो खुदकुशी कर ले। आपने क्या किया? जंगल से शेर को लाके रखा आपने, और आपने उसको बजाय गार बनाने के, मिट्टी के टेले बनाने के, आपने उसको एयर कंडीशन रूम दिया और खूबसूरत डबल बेड लगा दिया, और साथ में दुल्हन बना के शेरनी को बिठा दिया आपने। डबल बेड है, कंबल भी है, और खाने के लिए आपने सारी सहूलतें हैं ना। आज इंसान कहता है ना पुरतायुश लाइफ, तो ये मिल रही है ना इंसान को। लेकिन डिप्रेशन कम होने के बजाय क्या हो रही है? बोलो क्या हो गया भाई? बढ़ रही है। आपने क्या किया जनाब? उसको फिर आपने पीने पिलाने का भी इंतजाम कर दिया शेर के लिए। क्या आज तक पानी पिया है? जरा ये पी के देखो, टुन हो जाओगे, मजा ना आए पैसे वापस। शेरनी को भी लगा दिया कि तुम भी पियो, फिर लाइफ को एंजॉय करो। और उसको कहा कि तुम आज तक छीछड़े, गोश्त, हड्डी, गंदा, चूहे, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या खाते रहे हो। आपने जनाब ऑर्डर किया कबाबजी वालों को या हवेलियां को कि यार बेहतरीन मलाई बोटी जो है ना, शेर के लिए गरम गरम हांडी में बनी हुई, मक्खन का तड़का लगा हुआ, चिड़ियाघर में पहुंचा दे। और एक एलसीडी भी लगा दी कोई फिल्म देखने के लिए, शेर के हिसाब से कोई भी जंगल की फिल्म। पानी पीने के लिए स्ट्रॉ का इंतजाम किया आपने कि क्या जबान चाटता रहता है, घंटा तक 2 घूंट पी नहीं पाता, ठीक है ना, यहां से। तो मेरा ख्याल है थोड़े दिनों में आप पिंजरे में होंगे और शेर बाहर घूम रहा होगा। वो डिप्रेशन से ना या तो बाहर निकल जाएगा, आपको खा जाएगा, या वहीं टेंशन से मर जाएगा। मेरे भाई सेम यही हालत इंसान की है। अगर इंसान को पहली बात ये ना कोई बताए कि फितरत की डेफिनेशन क्या है, इंसान 2 गलतियां करता है। एक तो फितरत को पहचानने में, एक्सप्लेन करने में गड़बड़ कर रहा होता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखो, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम जिस तरह पैदा हुए थे ना वही असल नेचर है, उसी पे हमें मौत तक रहना है। वो खतने नहीं कराते,
भाई जब पैदा हुआ था तो खतने हुई भी थी क्या? तो नेचर तो क्या है बगैर खतने के? जब हम पैदा हुए थे जिस्म पे बाल नहीं थे, लिहाजा वो कहते हैं कहीं भी जिस्म पे बाल नहीं होने चाहिए। आपने इस किस्म के लोग देखे हैं, ना सर के बाल, ना दाढ़ी के बाल, ना मूंछों के बाल, बिल्कुल अजीब से बने होते हैं। बाज लोगों ने कहा कि नहीं, ये नेचर नहीं है। नेचर ये है कि जब आप बालिग होते हैं तो नेचर खुद बाल पैदा करती है ना, तो बाल होने चाहिए। अब सिख लोगों का मजहब क्या है, कहीं के बाल भी ना काटो, सर के बाल भी, दाढ़ी के बाल भी, मूंछों के बाल भी, बगलों के बाल भी, जितने बड़े हो ये नेचुरल है। बताओ फितरत को एक्सप्लेन करने में गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो ना यार, क्या हो गया? अगर यही मतलब है तो नाखून भी ना काटो भाई। नाखून भी क्या हो रहे होते हैं आपके, बढ़ रहे होते हैं। दांत भी साफ ना करो। जानवरों को अगर देखते हो तो किसी जानवर को ब्रश करते हुए देखा आपने? क्या हो गया, कभी देखा किसी जानवर को ब्रश करते हुए? इंसान क्या यार, मैं भी चूंकि मेडिकली तो हैवान ही हुआ ना इंसान, तो जैसे उनमें ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, खुद ब खुद दांत हो जाते हैं, उनको साफ करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों साफ करें? और आप हिस्ट्री उठा के देखें, ना लोग दांत साफ किया करते थे, ना कहीं के बाल साफ किया करते थे। पैगंबरों ने उनको दांत साफ करना सिखाया और बाल साफ करना सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 चीजें पैगंबरों की फितरत हैं, इंसानों ने ये पैगंबरों से सीखी हैं। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकलीमुल अज़फ़ार, नाखूनों को काटना। जब तक पैगंबरों की तालीमात नहीं थी, लोग नाखून काटने के बजाय क्या किया करते थे, बढ़ाया करते थे। तो बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो। नतफुल आना, हल्कुल आना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेरे नाफ बाल साफ करना। ये इंसानों को किसने सिखाया है? ये नेचर है इंसान की, लेकिन इंसान इसको खुद डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इंसानों पे छोड़ देंगे, बहसें होंगी। अल्लाह ने पैगंबरों को नेचर सिखाई, और पैगंबरों ने किसको जाके सिखाई है? बोलो ना यार, इंसानों को जाके सिखाई है। जिस कौम में भी नाखून काटने का रिवाज है, आप अगर माजी में जाएंगे, जाते जाते उनका पैगंबरों से, आसमानी किताबों से कोई ना कोई लिंक आपको नजर आएगा। और आपने फरमाया नतफुल इबित, बगलों के बाल नोचना, ये किसकी फितरत है? अबे बोल लो, क्या हो गया यार? ये पैगंबरों की फितरत है। जिस कौमों में बगलों के बाल साफ करना नजर आएगा, या तो उनका माजी में पैगंबरों से रिश्ता, या ऐसी कौम से सीखा होगा जिनका पैगंबरों से रिश्ता है। जैसे मुसलमान है ना, पैगंबर से ताल्लुक है ना, तो या तो मुसलमानों से सीखा होगा उन्होंने, खुद से इन चीजों की तरफ लोग नहीं गए हैं, क्योंकि इसमें बहस होती है कि ये फितरत के है भी कि नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुशबू का इस्तेमाल। जानवर को देखा कभी, शेर सुबह सुबह निकल रहा हूं स्प्रे करके? ये जो खुशबू का इस्तेमाल है, ये भी इंसान की नेचर है। ये नेचर किसने सिखाई है हदीस के मुताबिक? बोलो, पैगंबरों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह करना, निकाह करना, ये किसकी फितरत है? पैगंबरों की। इंसान ने, खूब समझ लो, खुद से मैरिज और निकाह ये इंसान ने खुद से नहीं सीखा। एक नफ्सियाती डॉक्टर की मैं तकरीर सुन रहा था। ये जो हमारे नफ्सियाती डॉक्टर हैं बहुत से अच्छे हैं, जो मेरा बयान सुन रहे हैं वो तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो नहीं सुन रहे उनकी बात कर रहा हूं। ये सारी नफ्सियात पढ़ते हैं गोरों से। ये कहां से पढ़ के आ रहे होते हैं? वो ही सारे कवानीन यहाँ, उनका इतलाक यहाँ पे कर रहे होते हैं। और भाई तुम इस सोसाइटी में रहकर कानून किसके थोप रहे हो? उस सोसाइटी के। ये तो अजीब सी बात है या नहीं? बहुत समझदार जो डॉक्टर हैं, वो तो मैं मिला हूं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझते हैं सारी चीजें, तो वो तो उसूल और कुल्लियात जो है ना उनके हिसाब से फैसला करते हैं। लेकिन बहुत से डॉक्टर अजीब, एक डॉक्टर साहब तकरीर फरमा रहे थे कि ये जो निकाह का रिवाज हमारी सोसाइटी में या इंसानियत में आए, 5000 साल पुरानी तारीख है इसकी। ये जो मैरिज सिस्टम इंसानों में शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? क्या मतलब इससे पहले निकाह का रिवाज नहीं था? मैंने कहा ये डॉक्टर साहब गोरे से इतना मुतासिर हैं कि इनको इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि गोरे ने जब बहुत बड़ी फेंकी है तो थोड़ा सा अपनी सेंस इस्तेमाल करके गौर कर लेते कि क्या ये लॉजिकली बात बनती भी है कि नहीं बनती। 5000 साल पहले क्या गोल में इस कॉन्फ्रेंस हुई थी? देखो, आप जितना माजी की तरफ जाओगे, मुझे एक बात बताओ, निकाह का रिवाज बढ़ता हुआ नजर आए, कम होता हुआ नजर आएगा या बढ़ता हुआ नजर आएगा? बढ़ता हुआ नजर आएगा ना। देखो, हम जब ग्राफ खींचते हैं ना, हम जब एक व्हाइट बोर्ड पे ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में लाइन या तो यहां से ऊपर जा रही होती है या ऊपर से नीचे आ रही होती। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, निकाह का रिवाज कम हो रहा, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बोलो, कम हो रहा है ना। अबे तुम्हें यही नहीं पता कि कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? तुम्हारे बाप दादा में रिवाज ज्यादा था या अब ज्यादा है? बाप दादा में ज्यादा। गोरों में भी, यूरोप में पहले निकाह का रिवाज ज्यादा था, अब क्या हो गया?
कम हो गया। जैपनीज में पहले शादियों का रिवाज ज्यादा था, अब हो सकता है निकाह मुश्किल लफ्ज आपके समझ में ना आ रहा हो, जैपनीज में पहले शादी का रिवाज ज्यादा था, अब क्या है, कम है। तो जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, शादी ब्याह का रिवाज बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहां तक कि फ्रांस के एक चर्च में एक दफा एक शादी के लिए जोड़ा आया तो बाकायदा न्यूज एंकर पहुंच गए कि वंस अपॉन अ टाइम किसी की यहां शादी हुई थी, 10 साल से अब तक किसी की शादी हमने देखी नहीं है। तो ये रिवाज कम बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि कम होने का ग्राफ क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो हम अगर पास की तरफ जाएंगे तो जो चीज फ्यूचर में कम हो रही है, इसका मतलब पास्ट में वो क्या थी, ज्यादा थी ना। यानी शादी ब्याह का रिवाज फ्यूचर में जैसे जैसे जा रहे हैं कम हो रहा है, इसका मतलब पास में जैसे जैसे जाएंगे क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। और ये हिस्ट्री भी यही बताती है, गोरे भी इसी के कायल हैं, जैपनीज भी मानते हैं पहले मैरिज सिस्टम मजबूत था, अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब मुझे बात बताओ, 5000 साल, अच्छा जितना पीछे जाओगे तो फिर आपको जिना मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट नजर आएगा। जिना होता जरूर था लेकिन कोई इक्का दुक्का वाकयात और उसको बहुत सोसाइटी में बुरा समझा जाता था। हम जो 1000 साल पहले की फिका की किताबें पढ़ते हैं, 1200 साल पहले की, उसमें जब जिना की बात आती है तो तमाम फुकाहा एक चीज लिखते हैं कि जिना तमाम कौमों में, तमाम कल्चरों में, तमाम मजाहिब में हराम समझा जाता है। इसका मतलब आज से 1200 साल पहले सेकुलर लोग, मुल्हिद लोग भी जिना को क्या समझते थे, हराम। इंसानी नेचर इसको कबूल नहीं करती थी, ये गलत है ये। यानी ये इस पे बहस फुकाहा ने लिखी है कि कोई गैर मुस्लिम इस्लामी रियासत में जिना करे तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसका जवाब था मिलेगी, क्योंकि ये उनकी नजर में भी हराम है और ये हराम है फिल अदियानी कुल्लिहा। उस वक्त रूए जमीन में जितने कल्चर थे, जितने मजाहिब थे, सब में क्या था, ये हराम होता था, लेकिन गैर कानूनी होके, गलत समझ के किया जाता था। अब मुझे एक बात बताओ, हम माजी की तरफ जाते 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 एक स्टेप ऐसा आता है कि सारी दुनिया में निकाह का रिवाज था। अब अगर 5000 साल पहले हम पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि 5000 साल पहले निकाह का रिवाज शुरू हुआ था, उससे पहले इसका मतलब है, बोलो ना यार, नहीं था। तो इसका मतलब वो जो जंगली लोग थे, पैगंबरों का तो आपने इनकार कर दिया कि पैगंबर तो आए नहीं, वो जो जंगली लोग थे ना, जो तहजीब से बिल्कुल आरी, जो अभी इर्तिकाई मराहिल तय करते करते बंदर से ताजा ताजा इंसान बने थे, अभी वो समझ में आ रही है बात, वो अभी ताजा ताजा क्या बने थे, ताजा ताजा दुम गायब हुई थी उनकी, ताजा ताजा उनके जिस्म के बाल गायब हुए थे, अभी थोड़ा बंदर से फिर भी थोड़ी बहुत सारी चीजें उनकी मैच कर रही थी। तो वो इतने जहीन लोग थे, इतने जहीन, मुझे पता है कि ये 5000 साल पहले बंदर से इंसान नहीं बने थे, कोई मेरे उस पर साइंसी लिहाज से इतराज कर सकता है, जो डॉक्टर, जो साइंसदान कहते हैं वो तो 5 करोड़ साल पीछे ले जाएंगे आप, लेकिन बहरहाल आज के दौर की निस्बत तो बंदर के ज्यादा करीब थे ना, तो इसलिए आज से ताजा ही हो गए। तो मतलब ये है कि वो इतने जहीन लोग थे कि उन सब ने जंगलों से जमा होके गोल मेज कॉन्फ्रेंस की कि आज के बाद हम शादी ब्याह करके जिंदगी गुजारेंगे। ये बात खोपड़ी में आती है, नहीं आई बात सर, ये खोपड़ी में आती है बात। जबकि जिना में लज्जत इतनी है और शादी में टेंशन इतनी है कि इस मैरिज सिस्टम पे लाने के लिए आज यूरोपीय कुव्वतें हथियार डाल बैठी हैं। वो चाहती हैं शादी ब्याह का रिवाज आए, उनके बस में नहीं है अभी ये। तो उस दौर के जंगलियों के बस में था कि सारे इंसान को जमा करके मैरिज सिस्टम को प्रमोट करो, और वो कामयाब भी हो गया। ये बहुत बड़ी फेंकी है या नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ डॉक्टर साहब ने। खुदा की कसम, माजी में आप जाओ, निकाह का मजबूत निजाम, ये पैगंबरों के वजूद की और उनकी तालीमात के असर की इतनी बेहतरीन दलील है कि इस दलील के बाद मजहब के बरहक होने के लिए किसी और दलील की हाजत नहीं रहती। ये पैगंबरों ने ये काम करवाया, और पैगंबरों की मोटिवेशन के बगैर इतनी बड़ी दुनिया का निकाह सिस्टम पे जमा हो जाना इम्पॉसिबल, ये मुमकिन भी नहीं है। जैसे मुसलमानों में शराब नहीं है, क्या कानून की वजह से, इस्लाम की वजह से। पैगंबरों की मोटिवेशन बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि उनके पीछे मोजज़े होते हैं, उनके पीछे अपनी लाइफ होती है। पैगंबरों के अलावा अल्लाह ने किसी को ऐसी ताकत ही नहीं दी है कि ऐसा मोटिवेट करे कि मिन हैसुल कौम, पूरी कौम से एक जुर्म खत्म हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो इस्लाम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी जिसमें ज़िना हराम था। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। और इस्लाम ने यह दावा किया है कि सबसे पहला इंसान जो दुनिया में आया उसने निकाह करके जिंदगी गुजारी है, फिर उसकी औलादों में निकाह हुआ है। तभी आप जितना माजी की तरफ जाएंगे लोग आपको निकाह करने वाले नजर आएंगे, इसलिए कि इनकी असल ज़िना से नहीं बल्कि निकाह से शुरू हुई है। आपके खानदान में शादी का रिवाज होता है ना, तो 2-4 लोग तो बिगड़ जाते हैं, ज्यादातर अपने खानदान की रसूमात को फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमारा जो इन सारे इंसानों का, जैपनीज, चाइनीज,
اور یہ جتنے گورے ہیں، فرانسیسی ہو گئے، سویڈن والے ہو گئے، ناروے والے ہو گئے، سب کی اصل جو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ زنا سے نہیں بلکہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ نکاح سے۔ یہ خود پیغمبروں کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پہلے انسان کو اتنا شعور کیسے پیدا ہو گیا کہ میں نے اماں ہوا کے ساتھ شادی کر کے رہنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی نکاح کی ترغیب دینی ہے۔ یہ موٹیویشن اور یہ گائیڈنس ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ یہ خود سے نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے دی تھی ان کو گائیڈنس۔ خود سے انسان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچتی ہے، بہت مشکل ہے یار۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گرو مندر سے آئے؟ فرسٹ ٹائم آئے ہیں آپ؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آ رہی ہے، الحمدللہ۔ یہ گرو مندر سے آئے ہیں آپ لوگ تو پرانے ہو گئے نا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عسکری فورس، اچھا ماشاء اللہ، اچھا ماشاء اللہ جی، اچھا بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یار۔ اچھا ایسا یہ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ نئے ہیں، ٹھیک۔ اچھا 10:30 بجے تو بیان تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، کتنی واضح بات نہیں ہے۔ یہ گورے کو چاہیے نا ہسٹری پڑھ کے وہ پیغمبروں کے وجود کا قائل ہو۔ یہ میں مولوی کیوں سمجھا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں؟ یہ تو گورے کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ یار یہ حیرت کی بات ہے، جتنا ماضی کی طرف جائیں ہمیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی، جتنا پاس کی طرف جائیں، اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے ہمیں حیوانیت بڑھتی بھی نظر آ رہی، حالانکہ ترقی ہو رہی ہے۔ یہ جو تہذیب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ترقی کی وجہ سے ہے، یہ ترقی کی وجہ سے روڈ صاف اور یہ سب مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مینجمنٹ انسان نے سیکھ لی ہے کہ ملکوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، قوم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے آپ کو حلال کا کانسیپٹ کم ہونے کے بجائے زیادہ نظر آئے گا۔ دنیا میں 2 قومیں جو ہسٹری کے لحاظ سے جن کا ریکارڈ بہت زیادہ محفوظ ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی۔ باقی قومیں بھی ہیں، کہا جاتا ہے یہ چائنیز جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبل مسیح، لیکن میں ان قوموں کی بات کر رہا ہوں جن کی ہسٹری بھرپور طریقے سے محفوظ، جیسے مسلمانوں کا تو A to Z ایک چیز محفوظ ہے نا۔ ان تمام قوموں میں آپ کو کتے بلی کھانا نظر بولو نہیں آئے گا۔ کھانے کے معاملے میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو ان میں۔ یہودی حرام کھاتے ہوں گے، کتے بلی نہیں کھاتے۔ انگریز حرام کھاتے ہیں، کتے بلی بولو نہیں کھاتے، یعنی کہ جو مرضی آ جائے پکڑ کے کھا جائیں۔ چائنیز ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے ہوں گے بہت قدیم، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہوں گے۔ جو قریب ترین پیغمبر ہمیں ملتے ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر، لیکن جو بہت فیمس ہیں جن کو یہودی بہت فالو کرتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام۔ سمجھ گئے یہاں تک بات؟ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی ہسٹری تو ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح ملتی ہے کو، تو آج دنیا کی اکثر آبادی ان پیغمبروں کو مانتی ہے۔ تو جو ان پیغمبروں کو مانتے ہیں، کھانے پینے میں آپ دیکھ لو ان کی خوراک میں آپ کو گندگی کم نظر آئے گی، اور جو ان پیغمبروں کو نہیں مانتے ان کی خوراک میں آپ کو گندگی زیادہ نظر آئے گی۔ چائنیز نہیں مانتے، ان میں کوئی پیغمبر گزرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے گزرے ہوں، وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ آپ کہو یار اس سے بہتر تھا بہنوں کی وراثت کھا لیتا۔ وہ بھی بری چیز ہے، اس میں بھی جہنم کی وعیدیں ہیں، مگر کتا کھانے سے تو پھر بھی کیا ہے، بہن خود کہے گی میری وراثت کھا لے، کائنڈلی کتا نہ کھا تو، یعنی بہن کو بھی اتنی گھننی آئے گی اپنی وراثت آپ کھا جائیں، کتا کھانے سے اس کو بھی گھن آئے گی۔ گورا نہیں کھائے گا کتے، بلکہ گورے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو چائنا میں کتے کھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ فیلنگ پہ مدار رکھتے ہو نا، فیلنگز، جیسے اس نے کہا بہن سے نکاح میں آپ کو گندی فیلنگز محسوس ہوتی ہیں لہذا یہ کیا ہے، گندا ہے، تو ہمیں تو کتا کھاتے ہوئے اسی طرح گندی فیلنگ محسوس ہوتی ہیں، تو ہم تو کتے کو بھی کیا کہتے ہیں، فطرت کے خلاف۔ چائنا والا کتے کو فطرت کے خلاف نہیں کہتا، تو یا تو ہماری فیلنگ چینج ہوئی ہوئی ہیں یا چائنا والوں کی چینج ہوئی ہوئی ہیں، دونوں میں سے ایک نئی غلطی پر ہیں۔ لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہماری فیلنگ اگر کتا کھاتے ہوئے ہمیں گھن آتی ہے تو یہ ہماری وجہ سے نہیں، ہمارے اوپر تربیت کے اثرات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اگر عیسائی کو کتا کھاتے ہوئے گھن آ رہی ہے تو یہ فیلنگ جو بچائی کے رکھی ہوئی ہے نا، کتا کھانے سے گھن آنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اگرچہ اب عیسیٰ کو فالو نہیں کر رہا وہ، لیکن باپ دادے نے تو فالو کیا ہے نا، وہی اثرات چلے آ رہے ہیں۔ یہودی اگر آج بھی ذبح کر کے کھا رہا ہے، مردار نہیں کھا رہا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے، کیونکہ تینوں قوموں میں قدر مشترک کیا چیز ہے، کامن کیا ہے، تینوں قومیں کتا بھی نہیں کھاتی، تینوں قومیں جو ہے مردار بھی نہیں کھاتی، تینوں قوم، ٹھیک ہے آج کل عیسائیوں نے کھانا شروع کر دیا کیونکہ وہ مذہب کے زیادہ باغی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کھانے پینے کے معاملے میں چند چیزیں تینوں میں قدر مشترک، اور دوسری طرف قدر مشترک کیا ہے،
कॉमन क्या है, तीनों पैगंबरों को मानते हैं। ये साफ अलामत है कि ये जो असरात इनमें आए हैं खुराक के मामले में, जो ये मुहज्जब है, गंद नहीं खा रहे, ये पैगंबरों की तालीमात है। तो यहां नेचर पे चलाने वाले कौन है? पैगंबर हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? आज भी दुनिया में आप हिस्ट्री उठा के देखें, मौजूदा हालात को देखें, तो आपको पता चलेगा कि भाई फितरत पे को एक्सप्लेन करना भी सिर्फ पैगंबरों का काम है, और उस पे चलाने के लिए धक्का देना भी किसका काम है? पैगंबरों का काम है। इसके बगैर नहीं हो सकता, इसके बगैर नहीं हो सकता। और आपको बताऊं, जो अखलाकी जुर्म है, जो बहुत ज्यादा इंसानियत से हट के जो जिसको इंसानियत बहुत घनाउने जराइम समझती है, वो जराइम भी आपको गोरों में और यहूदियों में कम नजर आएंगे, उन लोगों में ज्यादा नजर आएंगे जो किसी आसमानी मजहब को फॉलो नहीं करते। आपको अमेरिका में नजर नहीं आएगा कि छोटे बच्चों का गोश्त बिक रहा है, मासूम बच्चों का भेजा खाया जाता है, जिंदा बंदर को काट के उसका मगज पिया जाता है। आप उन कौमों में जब सर्वे करेंगे ना, ये तो बाहर से बहुत अच्छे नजर आएंगे आपको, लेकिन जब आप जाएंगे ऐसे कंट्रीज में जो किसी पैगंबर का नाम ही नहीं लेते, पैगंबरों को मानते ही नहीं है, आपको उनमें जिंदा बंदर जो तड़प रहा है नीचे स्ट्रॉप के जरिए, उसका मगज पीने वाले होटल भी बोलो नजर आएंगे। आप YouTube पे सर्च कर लें, इंसानों का गोश्त खाने वाले भी आपको नजर आएंगे। छोटे मासूम बच्चे जो मर जाते हैं, उनके गोश्त के होटल भी आपको बोलो नजर आएंगे। आपको गोरों में फिरवा मिलेगा आपको। लेकिन आप जरा अपने पड़ोसी मुल्क चक्कर लगा लें, मैं चाइना का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आपको इंसानियत चाइना वालों को कोई तर्जमा करके ना बताए मेरी ये बात, तर्जमे में कुछ और मतलब बन जाएगा। वो चाची की पों करेंगे, वो समझने के बहुत तारीफ कर रहे हैं हमारी। जबानों की तहजीब देख लो यार, जबान देख लो, एक इंग्लिश जबान है, एक उर्दू है, और उन कौमों की जबानें देख लो जो मजहब को आसमानी मजाहिब नहीं है, उनकी जबानों में आपको बड़ा फर्क, आपको जबानों में तहजीब और जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज्यादा अच्छी मिलेगी उन कौमों की जो मजहब को फॉलो करते रहे हैं। लिखने में देख लो रस्मुल खत, वो कौमें जो मजहब को फॉलो नहीं करती रहे, उनको पैगंबरों की गाइडेंस नहीं है, उनके रस्मुल खत बड़े अजीब हैं। इतनी सी बात लिखने के लिए 4-4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। मैं थाईलैंड गया तो मैंने कहा कि ये बार बार हर जगह पे झोपड़ियां और कुर्सियां उल्टी भी क्यों होती हैं यहाँ पे? हर साइन बोर्ड पे ना भाई, वहां साइन बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई हैं, कुछ झोपड़ियां उल्टी पड़ी हुई हैं, कुछ डंडे यूं पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा भाईजान ये पूरा मजमून लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रोड देख के पार करें आप। मैंने कहा ये क्या है यार? उन्होंने कहा ये जबान लिखना इतना टेंशन वाला काम है ना, क्योंकि पूरे पूरे जुमलों के लिए पूरी पूरी तस्वीरें हैं, तो एक छोटा सा जुमला लिखने के लिए यूं यूं इतना लंबा चौड़ा मजमून लिखना, यानी रिटर्न में बड़ी लंबी बात हो जाती है वो। आप पैगंबरों के जो लोग फॉलो करते हैं, आप उनकी जबानों को देखो, उनके लिखने के स्टाइल को देखो। इब्रानी जबान है, इंग्लिश है, और इससे भी ज्यादा खूबसूरत है अरबी। खूबसूरत तरीन जबानों में अरबी का शुमार होता है, बलीग तरीन जबानों में शुमार होता है, और लिखने में कितनी खूबसूरत है। रस्मुल खत ऐसे जैसे फूल बूटे बने हुए हैं, फूल बूटे 20 रस्मुल खत हैं उसके। और कमाल की बात ये, आप एक मजमून चाइनीज में लिखो, एक छोटी एक लेटर लिखो कि मेरी आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, जैसे हम लिखा करते थे ना। अबे स्कूल में हमें रट्टा लगा के एक एप्लीकेशन, स्कूलों में तो यही होता है ना कराची के, कि वो ये इम्तिहान में आएगी लिहाजा ये याद कर लो। रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। ये हमने रेन पे मजमून लिखा था, रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। ये 25 साल पहले भी थी सोर्स ऑफ ट्रबल, और ये ट्रबल अल्हम्दुलिल्लाह कम होने के बजाय अब बेहतरीन सोर्स ऑफ ट्रबल जो है ना वो रेन है। अगर आप कहें कि कराची में टेंशन देनी हो तो क्या हो, बारिश की दुआएं मांगो अल्लाह ताला से जो रहमत है, यानी टेंशन के लिए अल्लाह की रहमत मांगो तो वो रहमत आपके लिए क्या बन जाएगी, जैसे बनी हुई है। तो इंग्लिश में आप कोई ऐसे लिखते हैं, कोई मजमून लिखते हैं, अगर वही मजमून आप अरबी में लिखेंगे ना, आधे सफे में आ जाएगा, वो बात पूरी होगी। लेकिन रस्मुल खत इतना खूबसूरत है अरबी का कि वो आधे पेज में आपकी पूरी बात कंप्लीट। उर्दू में जब आप लिखेंगे ना, उर्दू में तो आधे के बजाय कम से कम 1 पेज लगेगा। इंग्लिश में जब आप करेंगे तो कम से कम 2 पेज। चाइनीज में आप करेंगे ना अगर, तो आप एक अखबार छपवाएं, प्रेस से राब्ता करें आप कि यार मैं किताब छापना चाहता हूं, उसमें मैं ये लिख रहा हूं कि मैं काइंडली आई कैन नॉट, कुछ भी लिख दो आगे, मैं ये काम नहीं कर सकता। रेन इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल। वो कहेगा रेन से इतनी ट्रबल नहीं हुई जितनी मुझे लिखने से ट्रबल हो रही है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, हम कहते हैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इतना लंबा जुमला हो गया ना,
अरबी में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खत्म जी। जामे जबान है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात हो गई, क्या खत्म। उर्दू में आप कहते हैं उसने मारा, अरबी में क्या कहोगे? ज़राबा, बात क्या हो गई? कंप्लीट, ठीक है ना। तो जबानों के अदब, अदब जो है ना, अदब, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत शायरी, जो लोग मजहब से जितना करीब हैं उनकी जबानों में अदब का अंसर उतना ज्यादा है, जिनको मजहब को फॉलो किया जिन्होंने। अरबी अदब और उर्दू अदब का आज भी कोई जबान मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये मैं उन लोगों से सुन के कर रहा हूं जिन्होंने तहकीक की है, जो इंग्लिश के बहुत एक्सपर्ट हैं, जिनको उर्दू भी बहुत अच्छी आती है और उर्दू के भी अदीब है, इंग्लिश के भी। वो ये कहते हैं कि जब उर्दू और इंग्लिश का अदब के मामले में मुआवजना किया जाए तो गोरा खुद इस बात का मोतरब है, जिस गोरे ने उर्दू सीखी है, कि अंग्रेजी जबान अदब में उर्दू का मुकाबला नहीं कर सकती। जो शायरी और जो गजलें, जिस तरह से तमसीलात और इशारे इस जबान में है, जुल्फों की घनी छाओ, महबूबा को कहते हैं ना जुल्फों की घनी छाओ, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? है भाई, डार्क हेयर, जुल्फ जुल्फ है यार, उसका बालों से तर्जमा नहीं हो सकता। घनी छाओ, वो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि ये वो जो थे ना मुगल बादशाह लोग, उनके दरबारों में बनी है ना ये जबान उर्दू, तो उनका एक लेवल था ना, मेंटल लेवल था, वहां एक खास किस्म की शायरी थी। फिर इसमें फारसी बहुत आई है, अरबी बहुत आई है, और इससे ज्यादा अदब आपको मिलेगा अरबी में। तो मैं आपसे यह कर रहा हूं कि जितने भी मजहब को फॉलो करने वाली कौमें हैं, जिन्होंने पैगंबरों को माना है, नतीजा ये निकलेगा उनमें तहजीब जिसे कहा जाता है उसका उनसर उन कौमों से बहरहाल ज्यादा है जिन कौमों में तहजीब, जिन कौमों का पैगंबरों से वास्ता नहीं पड़ा। तो ये खुद इस बात की अलामत है कि इंसान को इंसान का बच्चा पैगंबरों के अलावा कोई भी नहीं बना सकता, और पैगंबर हमेशा जिंदा नहीं रहते, वो मजहब छोड़ के जाते हैं। तो हम ये कहने में हक बजानिब है कि इंसान को उसकी नेचर को एक्सप्लेन करने में और नेचर पे चलाने में मजहब के अलावा, इस्लाम के अलावा, क्योंकि मुकम्मल नेचर पे अब ईसाइयत या यहूदियत रही नहीं है, मुकम्मल पे सिर्फ इस्लाम ही है। तो इस्लाम के अलावा आपके पास इंसान का बच्चा बनने का कोई ऑप्शन है नहीं। वक्त पूरा होना भी समेट रहा हूं बात को मैं जल्दी। इंसान का बच्चा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि सही क्या है गलत क्या है। गोरा तो इस बहस में लगा हुआ है गर्लफ्रेंड में हर्ज क्या है यार, वो वहां भी शादी के बाद भी वही होता है जो अभी हो रहा है, तो क्या है इसमें? ओ भाई, तुम्हारा सारा मामू चचा खाला फूफी का निजाम खत्म हो गया। तुम्हारे हम पहले अब्बा मार्केट से शार्ट हुए, फिर खाला शार्ट हुई, मामू शार्ट हुए, फुप्पो शार्ट हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता बहन भाई शार्ट हो जाएंगे। जब बहन से निकाह जायज हो जाएगा इनकी होगा, ये फ्यूचर में ये होने वाला है। आप देखें कल हमारी नस्लें ये देखेंगी, कानून पास हो गया कि जब मर्द से निकाह की इजाजत है तो बहन तो फिर भी एक औरत है ना, जो वो कहते ही इसकी तो जानवरों में मिसालें मिलती हैं। ये सब हो जाएगा उस सोसाइटी में। तो इंसानियत को तबाही से बचाने के लिए आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझसे जब पूछा जाता है कि ये होमोसेक्सुअलिटी गलत है सही है, मेरे पास क्या है? गलत। मुझे कॉन्फिडेंस है। क्यों भाई? यार कुरान कह रहा है कि ये गलत। अब अल्लाह से कौन लड़े भाई? मुझसे कोई पूछे मुफ्ती साहब शराब पीते हो? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पीता। क्यों नहीं पीते यार? थोड़ा सा आपकी तो टेंशन ज्यादा है। एक आदमी एक टेंशन में पीता है, जो 3 टेंशनें होंगी तो उसको तो 3 बोतलें पीनी चाहिए रोजाना। मैं जवाब में क्या कहूंगा यार, ये सही और गलत की बहस जो है ना, मेरे लिए क्या हो चुकी है, या मेरे लिए लगा हुआ है, क्योंकि कुरान ने कह दिया जितनी भी टेंशन हो पीने की इजाजत नहीं है। फिर जब पीने की इजाजत नहीं है तो टेंशनें पाल क्यों रहे हो? ये उससे बड़ा सवाल होता है ना। अरे यार, तुम्हें डिप्रेशन में डिप्रेशन की गोली खाने की इजाजत नहीं है। एक डॉक्टर कहे कि आप डिप्रेशन की गोली खाएंगे तो आप मर जाएंगे, तो डॉक्टर साहब फिर मैं क्या करूं? तो डॉक्टर क्या कहेगा? फिर कोशिश करो डिप्रेशन हो ही नहीं, ऐसा कोई काम ना करो जिससे क्या हो डिप्रेशन। आपके पास सोने की जगह नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, तो डॉक्टर कहेगा इतना थकाओ नहीं अपने आप को, क्योंकि अब आप 24 घंटे तक सो नहीं सकते। तो यही होगा ना। तो हमें इस्लाम टेंशन खत्म करने के लिए शराब पीने की इजाजत नहीं देता, तो मैं कह सकता हूं भाई मैं इसलिए नहीं पीता कि इस्लाम मुझे टेंशन खत्म करने के लिए शराब की इजाजत नहीं देता। तो आप कहेंगे फिर टेंशन कोशिश करोगे, टेंशन हो ही नहीं, तो फिर ये 3 टेंशनें रखी हुई क्यों है? मैं कहूं यार ये एक चीज भी मेरे लिए क्या हो चुकी है, ये चैप्टर भी अल्लाह ने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। अल्लाह ने कहा ये वाली टेंशन रखो। अगरचे टेंशन खत्म करने के लिए मुझे पीने की इजाजत नहीं है, फिर भी अल्लाह ने क्या कहा कि फिर भी ये टेंशन तुम्हें पालनी पड़ेगी। तो हमारे पास तो यार रास्ता क्लियर है। अब हमारी जिंदगी तो वो पहले से जो मुतय्यन रास्ता है, अब तो बस अब चलने का मसला है हमारा कि स्पीड से चलते हैं, स्लोली चलते हैं। क़याम ताम ज्यादा हो रहा है तो तौबा इस्तिग़फ़ार करके वापस ट्रैक पे आओ, ठीक है ना। हमारे पास रास्ता रोजे रोशन की तरह क्या है, मुस्लिम के पास क्लियर है, गोरे के पास नहीं है, हिंदू के पास नहीं है, सिख के पास नहीं है।
यहूदी के पास नहीं है, ईसाई के पास नहीं है। तो मैं तो मेरे भाई इस्लाम से मोहब्बत करता हूं, मुझे इस्लाम ने 2 और 2 4 की तरह बता। आपके पास ये ऑप्शन है, बच्चे 2 हों के 3 हो, तीसरा हो जाएगा तो टेंशन, खर्चे कहां से पूरे होंगे, ये बहस में आप पढ़ोगे, मैं थोड़ी पढ़ूंगा। मुझे इस्लाम ने कह दिया भाई ये इस नियत से तुम्हें नस्ल रोकने की इजाजत नहीं है, रिस्क मेरे जिम्मे। अब मेरे अगर बच्चे हो भी जाएं ज्यादा और बिल फर्ज अल्लाह ने करे वो गुर्बत महंगाई की वजह से टेंशन में भी आ जाएं, तो मैं गुर्बत महंगाई कम करने की टेंशन तो लूंगा, ये टेंशन नहीं लूंगा कि इतने पैदा क्यों हो गए। आपके पास तो डबल टेंशन है, आपका तो एक भी हो गया ना, और बिल आखिर गुर्बत की वजह से उसकी फीस अदा करना मुमकिन नहीं है, तो आप तो एक की भी टेंशन लोगे। कमबख्त, ये जब पैसे थे नहीं तो पैदा हुआ क्यों, ये काम मैंने गलत किया, उस पर आप रोगे। हमारे तो 40 भी हो गए तो हम नहीं रोएंगे यार, ये तो कुदरत ने हुक्म दिया है, नस्ल मत रोको। गोरा तो यहां कंफ्यूज है, तभी तो उसको फैमिली प्लानिंग वालों ने कहा 2 बच्चे अच्छे, 2 में खर्चा कम होगा। गोरे ने कहा यार ये लॉजिक की बात लॉजिक, गोरा कहता है लॉजिक होनी चाहिए, जब भी बात करो उसके पीछे क्या होनी चाहिए, लॉजिक। उसने कहा लॉजिक तो ये कहती है 2 भी ना हो 1 ही अच्छा, इससे तो और ज्यादा खर्चा बच जाएगा। तो बहुत से गोरों ने कहा हो ही नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में हमें वैसे ही ओल्ड हाउस ने पालना है, तो हम लाइफ को एंजॉय करें ना, इस बच्चे की टेंशन हम लें क्यों। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि 1 भी नहीं हो, जिसका नतीजा क्या निकला, पूरी सोसाइटी फैमिली प्लानिंग की भेंट चढ़ गई। ऐसा ग्रोथ रेशो ना गोरों का यूं 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 ही जा रहा है। अभी मेरा यूरोप का सफर है तो मैं स्पीड बढ़वाऊंगा थोड़ी वहां जाके, सही मैं जहां भी जाता हूं ना ग्रोथ रेशो बढ़वा के आता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, गोरे भी तो बयान सुनते हैं ना, तो स्पीड बढ़वाऊंगा मैं कि भाई इंसानियत का ख्याल करो, इंसानियत तबाह हो रही है। आपको पता है कोविड-19 से जो तबाही आई है ना, ये माहिरीन की रिपोर्ट है कि फैमिली प्लानिंग से जो तबाही अब फ्यूचर में उसके असरात पड़ेंगे, वो कोरोना को लोग भूल जाएंगे, क्योंकि इतने लोग मरने से जो आबादी का रेशो घटा है ना, वो कुछ भी नहीं है जितना फैमिली प्लानिंग से घट रहा है। तो कोरोना को तो यूनाइटेड नेशन भूल गई है, अब वो इस पे लगे हुए हैं कि यार ये बढ़ाएं कैसे। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियों का हाल देखो यार, स्कूलों का वही पुराने बोसीदा जो कॉन्सेप्ट है ना, वही इनको बताए जा रहे हैं। तो खैर ये बहसें तो होती रहती हैं। तो मेरे भाई अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें क्या बनाया, मुस्लिम। और फिर एक बात जो मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह कहते हैं अल्लाह की कसम ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस के इख्तिलाफात में इस्लाम से फैसला ना करवाएं। अगर आप आपस के इख्तिलाफात में इस्लाम के अलावा किसी और से फैसला करवाते हो, फिर आपके शनाख्ती कार्ड में मुस्लिम होने से अल्लाह आपको मुस्लिम नहीं मानता। तो जब इस्लाम एक नेमत है तो हर फैसला किससे करवाओ, इस्लाम से करवाओ। तलाक का मसला हो, विरासत का मसला हो, घरेलू झगड़ों का मसला हो, कारोबार का मसला हो, हर चीज में आपने किससे फैसला करवाना है, इस्लाम क्या कहता है। भाई इस्लाम की बात आ गई, खत्म कि भाई अब नहीं हो। मुझे याद है एक साहब ने, उनका बेटा हुआ, वो हारिस नाम रख रहे थे, बड़ा खानदान में झगड़ा हो रहा, तो कहते हैं यार ये इसकी कोई, मैंने कहा मुझे ऐसा याद पड़ता है हदीस में इस नाम की फजीलत। उन्होंने कहा बस काफी है मेरे लिए, ठीक है ना, क्या है मेरे लिए, दिमाग सेट हो गया ना। तो बड़े सारे मसाइल आजकल चल रहे हैं। एक आखिरी बात करने दूं, एक जुमला बस। आजकल मियाँ बीवी के जो मसले, जब बच्चे जवान होते हैं ना, तो शादियों के बड़े मसले मियाँ बीवी में बड़ा इख्तलाफ हो रहा होता है। औरत को मान लेना चाहिए कि घर का सरबराह अल्लाह ने किसको बनाया, मर्द को। बस छोड़ो यार, अब बोले कि यार अल्लाह मियाँ ने इसको बनाया तो बस ठीक है, इसका फैसला क्या होगा आखिरी। ना जी ना, नहीं होता ऐसा। फिर मैं ये बात जब करता हूं तो इतने नेगेटिव कमेंट्स खवातीन के, तुम तो बस औरतों के पीछे ही पड़े रहो। ओ भाई, जो औरत के असल हुकूक है उस पर तो हम बहुत दफा बात करते हैं और कई क्लिप मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन जो नहीं है तो वो उससे घर तबाह हो रहा है ना, सोसाइटी तबाह हो रही है। और ये भी जहन में रखो, बाप को अल्लाह ने अथॉरिटी दी है, बाप को चाहिए ना अपने बच्चों के रिश्तों के मामले में ज्यादा अपने खानदान को ज्यादा लिफ्ट भी नहीं कराए। ये जो मशवरे होते हैं ना, मामू से भी मशवरा तो चाचा से भी मशवरा तो फूफा भी, इन मशवरों की भेंट चढ़ जाते हैं मामलात, और कभी भी आप किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। आप जब समझते हो कोई अपने करीबी दोस्त या कोई करीबी रिलेटिव रिश्तेदारों में ही हो, मशवरा उससे लेके अपनी राय कायम की, फैसला सुना दिया, भाई ये हो गया, दैट्स ऑल। तो अब पुलिस को बताएं, पुलिस को देखिए, मनवाना तो मेरा काम नहीं है। इससे क्या होता है कि जिन खानदानों में ये होता है ना, वो भी मशवरा तो नहीं होता भाई। फिर कोई भी खानदान में देखो, मैं बार बार कहता हूं, करप्ट हाकिम हो मुल्क में, 2 नंबर हो, पावरफुल हो, खुदा की कसम ये फिर भी बेहतर है एक ईमानदार हाकिम जिसके पास पावर नहीं है। कि पावर ही नहीं है तो करेगा क्या वो बैठ के, वो एक फैसला सुनाएगा, 20 लोग उसकी मुखालफत करके वो कलअदम कर देंगे। पावरफुल हाकिम ठीक है कुछ गड़बड़ भी करेगा, लेकिन फिर भी हाकिम होने की वजह से पॉजिटिव काम वो ज्यादा कर जाएगा। तो इस्लाम में हाकिम की बड़ी वैल्यू, और हाकिम की डेफिनेशन क्या है, जिसके पास पावर हो। पावर ही नहीं है ना, तो फिर ये जो हमारे यहाँ इतनी अक्सरियत से असेंबली में आए और इतनी नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी, तो कराची में गटर के ढक्कन कम से कम लगने वाले नहीं है। कोई
पावरफुल हाकिम हो कराची में, पूरे इख्तियारात उसके पास हो, फिर अगर गटर के ढक्कन नहीं लगेंगे तो कम से कम अब उस घर के बाहर जाके एहतजाज तो करेंगे ना यार, ढक्कन तो लगा दो खुदा के बंदो, कुछ तो होगा ना। कितना ही जालिम होगा, हम कहेंगे ढक्कन चोर चोरी कर रहे हैं, चोरों को रोक लो, खुद चोरी कर लो जितने करने हैं। वो कितने ढक्कन चोरी कर लेगा यार। लेकिन अभी तो ढक्कन चोरी की खुलेआम इजाजत है। हम पैसे से खरीद के ढक्कन लगाते हैं, कोई भी उठ के चोरी करके चला जाता है। हम अपने मुर्गे की हिफाजत नहीं कर सकते, कराची में मुर्गा चोरी हुआ हमारा, क्या क्या चोरी हो रहा है, लोगों की लाशें गिर रही हैं। वजह क्या है? कोई पावरफुल है ही नहीं, हाकिम ही नहीं। उसके पास जाओ कह रहे ये मेरे इख्तियार में नहीं, उधर जाओ कह रहे ये तो उनका काम है। थाने के पास इख्तियारात नहीं है, आपके इधर चोरी हुई हो, आप उस थाने में जाओ, बोले ये मेरा इलाका बनता ही नहीं है। अबे पहले मैप से ये तलाश करो ये किसका इलाका बनता है। बहुत बड़ी टेंशन है मेरे भाई। तो कहां से कहां बात चली गई। तो घर का सरबरा भी जब तक एक पावरफुल नहीं होगा ना मेरे भाई, घर में तबाही बर्बादी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस्लाम की कदर करो, इस्लाम को फॉलो करो। नेमत का तकाजा ये है कि उसको फॉलो किया जाए। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।